ਭੱਟ ਕਲ ਜੀ ਦਾ, ਕਲਸਹਾਰ ਜੀ ਦਾ ਜੋ ਸਵਈਆ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ, ਤਿਸ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਵਿਚਾਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੰਗਤ ਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਰੁਤਬਾ ਹੈ, ਮਰਾਤਬਾ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਵੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਮਹਾਨ ਸਨਮਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਰਿਸਪੈਕਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਵਸੈ ਜੀਓ। ਆਪ ਜੀ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਬਖਸ਼ੋ। ਸੰਗਤ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ, ਸੰਗਤ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ, ਰੱਬ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਚਾਰਨ ਕਰੋ ਸਤਨਾਮ, ਫਿਰ ਉਚਾਰਨ ਕਰੋ ਸਤਨਾਮ। ਇਹ ਪਰਮ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸਭ ਕੁਛ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਆਪਣਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਗਰ ਕੁਛ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੀ ਬੈਕਗਰਾਉਂਡ ਦੇਖਿਓ, ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਿਸ਼ਠਭੂਮੀ ਦੇਖਿਓ, ਉਸ ਵਸਤੂ ਦਾ ਬੇਸ ਦੇਖਿਓ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੋਏਗਾ, ਈਸ਼ਵਰ ਹੋਏਗਾ। ਔਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀਆਂ ਅਨੰਤ ਦਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਇਹ ਸਰੀਰ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਅਮੁੱਲਕ ਦਾਤ, ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਕੀਮਤ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਤੇ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨੇ ਇਸ ਸਰੀਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਸ ਬਾਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਜੀਣ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਦੇਖਣ ਲਈ ਨੇਤਰ ਦਿੱਤੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਚੱਲਣ ਲਈ ਕਦਮ ਦਿੱਤੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਹੱਥ ਦਿੱਤੇ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਹੀ ਜੀਣ ਲਈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਦਿਮਾਗ ਦਿੱਤਾ, ਬਰੇਨ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਬਾਡੀ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵਰਕ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਉਸ ਜੋਤ ਦੇ ਸਹਾਰੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸਵਾਸਾਂ ਦੇ ਸਹਾਰੇ, ਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹ ਸਵਾਸ ਵੀ ਤੇਰੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਸਰੀਰ ਵੀ ਤੇਰਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਰੀਰ ਦਿੱਤਾ, ਇੰਦਰੇ ਦਿੱਤੇ, ਕਰਮ ਇੰਦਰੇ, ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੇ, ਤੇ ਕੇਵਲ ਦੇ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜੂਝ ਕਰਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਇਹਨਾਂ ਇੰਦਰੀਆਂ ਨੂੰ, ਇਸ ਸਮੂਲਚੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸਫਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਰੂਹਾਨੀ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ, ਸਤਵਾਦੀ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਦਰ ਤੋਂ ਨਿਵਾਜੇ ਹੋਏ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਫਲ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਵੀ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਡਿਪੈਂਡ ਮਨੁੱਖ 'ਤੇ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜੋ ਗਿਆਨ ਮਿਲਿਆ, ਜੋ ਜੀਵਨ ਜੀਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਸਲੀਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਜੋ ਸਹੀ ਜੀਵਨ ਜੀਣ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੁਗਤੀ ਦੱਸੀ, ਇਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਫਾਲੋ ਕਰਕੇ ਜੀਵਨ ਜੀਆ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਡਿਪੈਂਡ ਮਨੁੱਖ 'ਤੇ ਕਰਦਾ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਸਫਲ ਜੀਵਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹਰ ਪ੍ਰਾਣੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹਰ ਪ੍ਰਾਣੀ ਦੇ ਇੰਦਰੇ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਫਲ ਉਸ ਪ੍ਰਾਣੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਹੈ
ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਜੀਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਲੌਜਿਕ ਰਾਹੀਂ ਜੀਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਆਪਣਾ ਆਦਰਸ਼ਕ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾਇਆ, ਜਿਹੜੇ ਜੀਵਨ ਅੰਦਰ ਹਰ ਪੱਖ ਤੋਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਕਲਾਮ ਸਾਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਣ ਦਾ ਢੰਗ ਬਖਸ਼ਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਾਤੀ ਦੇ ਲੋਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਫਿਰਕਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਪਰਮ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਵਰਲਡ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਇਤਿਹਾਸ ਅੰਦਰ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸੀ ਕਿ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਜੋ ਫਲਸਫਾ ਸੀ, ਜੋ ਗਿਆਨ ਸੀ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਮਕਾਲੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗ੍ਰੰਥ ਅੰਦਰ, ਚਾਹੇ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈ, ਤਕਰੀਬਨ ਉਹਨਾਂ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਹਿਨੁਮਾ ਦਾ ਹੀ ਕਲਾਮ ਦੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੁਣਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਪਰ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਅੰਦਰ ਗਿਆਨ ਲੈਣ ਆਏ, ਆਤਮਿਕ ਟਿਕਾਓ ਲੈਣ ਆਏ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜੀਵਨ ਜਾਚ ਸਿੱਖਣ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਐਸੀ ਜੀਵਨ ਜਾਚ ਸਿੱਖੀ, ਔਰ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਉਹ ਐਸੇ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋਏ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਕਲਾਮ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹੀ ਐਡਜਸਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨੇ ਇਹ ਭੱਟ ਲੋਕ ਗੁਰੂ ਸਿਫਤ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਗੜੂੰਦ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਗੜੂੰਦ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਾਫੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਕਲਾਮ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣਦੇ ਆਏ ਹੋ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ, ਪਰ ਇਹ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਸੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਅਨੁਯਾਈਆਂ ਦੀ ਕਲਾਮ ਨੂੰ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ, ਜਿੰਨੀ ਤਿਆਰੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਵਿਚਾਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹੀ ਮਾਨ, ਉਹੀ ਸਨਮਾਨ ਸਾਡਾ ਇਹਨਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਹੈ। ਭੱਟ ਕਲਸਹਾਰ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਬੈਠਣ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਏ, ਨਾਲ ਬੈਠਣ ਆਏ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੈਠਣ ਆਏ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋ ਗਏ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਵੇਂ ਹੰਢਾਇਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦਾ ਜਸ ਜਿਸ ਕਦਰ ਕੀਤਾ, ਗੁਰੂ ਭਗਤੀ ਨੂੰ ਜਿਸ ਕਦਰ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਨੀ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਪਾਵਨ ਸਵਈਏ ਰਾਹੀਂ ਭੱਟ ਕਲਸਹਾਰ ਜੀ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਅਮਿਓ ਰਸਨਾ ਬਦਤ ਬਰਦਾਤ। ਹੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜੁਨ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਰਸਨਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਰਸਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਰਸਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਰਾਤੀ ਨਾਨਕ ਪਿਓ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਦੋ ਹੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੇ, ਪਰਸਨੈਲਿਟੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਸਨਾ ਤੋਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਗਲਤ ਬਚਨ,
कभी भी कोई गलत कर्म नहीं हो सकता। वो दो शख्सियतां ने गुरु ग्रंथ साहब, गुरु जी, चाहे वो फिजिकल रूप में सन ते फिजिकल रूप अंदर, चाहे उन्होंने जो सानू ईश्वरी ज्ञान बख्शिया, जो साडा गुरु है, ना फिजिकल रूप अंदर ही गुरु साहबाना दी जीवन विचों कोई गलती मिलती है, ते ज्ञान विच ते गलती होनी ही की है। चंगे तो चंगा बंदा भी कदी कौड़ा बोलता है, चंगे तो चंगा बंदा भी तो कदी कोई गलती कर दिंदा है। गुरबाणी दा फैसला है, भुल्लन अंदर सब को, अभुल गुरु करतार। हर बंदा भुलदा है, एक भी लभेगा जिदे कोल कोई गलती ना होए। फर्क इतना कि बंदा अपनी गलती नूं लुकांदा है, दूसरे दी गलती नूं, अवगुण नूं उछालदा है। परमात्मा ते गुरु अभुल ने, जिन्हां कोल कदी कोई गलती हो ही नहीं सकती। कदी गुरु नूं, ईश्वर नूं किसी दे गुनाह फरोलदियां देखिया, और जिहड़ा गुरु रूप हो जाए, जिहड़ा ईश्वर रूप हो जाए। गुरबाणी का एक बचन है, कहन लगे रब जी कदी कौड़ा नहीं बोलते, हाँ संभल थकी जी वो कदे न बोले कौड़ा। कहन लगे मैं एकाग्रता नाल सुन सुन के देखे है, कोई कदी तो रब कौड़ा बोलेगा ही ना, कदी तो रब कौड़ा बोलेगा ना, गुरु बोलेगा। कहने लगे नहीं बोलेगा, मैं थक गई, पर गुरु ते रब ने कदी कौड़ा नहीं बोलिया। पुछया क्यों? सतगुरु कहने लगे कौड़ा बोल ना जाने। साडे वर्गे लोग जिहड़े है ना, खास तौर पे साडे वर्गे लोग, वो कौड़ा बोलना जानते ने, पर कौड़े बोलों नूं दबा लेंदे ने। अगे कौन है, उहदी परसनैलिटी देख के, उहदी शख्सियत देख के, उहदा रुतबा देख के। कुछ बंदे ने जिहड़े कौड़े बोलों नूं पुश कर लेंदे ने। है अंदर कुड़तनता है, जहर है, पर दबा के रखी हुई है। गुरु की बाणी अंदर अजिहे बचन ने। बाबा फरीद जी का एक अमृत बचन है, कंध मुसल्ला सूफ गल। मैं देखदा एक धार्मिक आदमी नूं कंधे ते मुसल्ला है, सूफ गल, गल विच धार्मिक चिन्ह है, माला है। दिल काती, जदों मैं अंदर झाक के देखदा ना, अंदर दिल काती गुड़वात, गल्लां गुड़ वर्गियां ने, बातां गुड़ नालों भी मिठियां ने। हुण अंदर की है? अंदर का जिहड़ा जहर है ना, वो गुड़ दे थले लुका के रखिया हुआ है। जिन्होंने इवें भी आख्या फरीदा ये विस गंधला है, तो विस दियां गंधला ने, उपर लेपन दिता है खंड दा, मिठास दा। लेकिन गुरु दोहरी जिंदगी नहीं जींदा, क्योंकि गुरु निरंकार दा रूप है। सतगुरु कह लगे हे गुरु अर्जुन दे पिता जी, तुहाडी रसना ते अमृत है। तुसी जद भी बोलते हो अमृत ही बोलते हो, जद भी बोलते हो मिठा ही बोलते हो। तुहाडे श्री मुख तो कदी कौड़े बचन सुनन नूं मिले ही नहीं। परमात्मा ने रसना सारियां नूं दित्ती है, पर गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दे पावन बचन ने कईयां दी जुबान, कईयां दी रसना
ਰੱਬ ਦਾ ਟਿਕਾਣਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਪ੍ਰਭ ਜੀ ਬਸੈ ਸਾਧ ਕੀ ਰਸਨਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਬਸਦਾ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਦੀ ਰਸਨਾ ਤੇ। ਇਸੇ ਲਈ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਦੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਨਿਕਲੇ ਹੋਏ ਬੋਲ ਕਦੀ ਵਿਅਰਥ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਦੀ ਰਸਨਾ ਦੇ ਬੋਲ ਮੀਨਿੰਗਲੈਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਸਥਾਨ ਬਣਦੀ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਚਿੰਤਨ ਕਰਕੇ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਬਾਰ ਬਾਰ ਸਿਮਰ ਕੇ ਇਸ ਜ਼ੁਬਾਨ ਅੰਦਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਰਸ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹਦੀ ਰਸਨਾ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਰਸ ਨੂੰ ਚੱਖ ਲਿਆ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਇੱਕ ਤੇ ਕਦੀ ਕੌੜਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇਗੀ। ਹਾਂ, ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਗੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲੱਗੇਗਾ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦਾ ਕੌੜਾ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਰੱਬ ਗੁਰੂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਬੰਦਾ ਅਗਰ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਕੌੜੀ ਵੀ ਲੱਗੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਬੈਕਗਰਾਉਂਡ ਦੇਖਿਓ ਵੀ ਉਹਦੇ ਕਹਿਣ ਵਿੱਚ ਕੁੜਤਨਤਾ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭਾਵ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਣਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਵਸਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਬਾਂਝ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਹੇ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪਿਆ ਉਹਨਾਂ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਤੇਰੀ ਇਬਾਦਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਮਾਵਾਂ ਬਾਂਝ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ। ਸ਼ਬਦ ਕਿੰਨੇ ਕਟਾਕਸ਼ ਭਰੇ ਨੇ, ਪਰ ਸਵਾਰਨ ਲਈ ਆ। ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਇਵੇਂ ਆਖਿਆ, ਜੇ ਗੁੜ ਝਿੜਕੈ ਤਾਂ ਮਿੱਠਾ ਲੱਗੈ। ਗੁਰੂ ਝਿੜਕਦਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਝਿੜਕਣਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਮਿੱਠਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਵਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਰਸਨਾ ਤੜਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਰਸਾਂ ਦੇ ਘਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਪਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਜਾਂ ਕੋ ਆਇਓ ਏਕ ਰਸਾ। ਜਿਹਦੀ ਰਸਨਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਰਸ ਆ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਰਸ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਹਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਜਪਣ ਦਾ ਚਾਅ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਔਰ ਇਹ ਵੱਧਦਾ ਗਿਆ, ਇਹ ਵੱਧਦਾ ਗਿਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਜਪਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾਮ ਜਪਦਿਆਂ ਜਪਦਿਆਂ ਜਦ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰਸ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਦੇ ਰਸੀਏ ਹਨ ਉਹ ਚਾਹਣ ਵੀ ਨਾ ਵੀ ਨਾਮ ਨਾ ਜਪਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ। ਜਾਂ ਕੋ ਆਇਓ ਏਕ ਰਸਾ, ਖਾਨ ਪਾਨ ਆਨ ਨਹੀਂ ਖੁਦਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਸੰਜਮ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਪਿਆ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਰਸਨਾ ਨੇ, ਕੰਨ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਏ, ਹੱਥ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਏ, ਇੱਕ ਕਦਮ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ। ਰਸਨਾ ਨੇ ਜਪਿਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਰਸਨਾ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਮੂੰਹ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਖਾਧਾ ਹੋਇਆ ਪਦਾਰਥ ਰਸਨਾ ਰਸ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਰੀਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਪਦਾ ਹੈ, ਜਪਦਿਆਂ ਜਪਦਿਆਂ ਜਪਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਸ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸਮੁੱਚੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਖਾਧਾ ਪਦਾਰਥ ਹਿੱਸਾ ਬਣਿਆ,
इवें ही परमात्मा का जपिया होया नाम अखां का हिस्सा बनया, उन्हें अखां तृप्त कर दित्तियां। मूँह दे राही खाधा पदार्थ कुछ समय की तृप्ति दिंदा है, पर याद रखियो वाहिगुरु जी का नाम जपिया ते बंदे नूं हर पक्ष तो तृप्त कर दिंदा है। हजूर दे बचन ने, जाको आयो एक रसा, खान पान आन नी खुदिया ताके चित न बसा। कह लगे होर ओदियां सारियां ही भुखा खत्म हो जांदियां ने, जिहदे हिरदे अंदर जपदियां जपदियां नाम दा रस आ जांदा है। ते हजूर गुरु अर्जुन देव महाराज जी की सिफत करदियां भट्ट जी आखदे ने, हे गुरु अर्जुन दे पिता जी, अम्यो रसना बदत बारदात। तुसी अपने श्री मुख तो दाता भी बख्शदे हो, वर भी बख्शदे हो, दाता बख्शदे हो। श्री गुरु अर्जुन साहब महाराज अपने श्री मुख तो जो कहते ने, जो भी किसी नाल बचन करते ने पूरा हुंदा है। मैं महाराज का एक बचन पढ़िया, वो गुरु की बाणी के अंदर बचन है, तो वो बचन गुरु दे सिख साहबान जी दा है, सत्ता ते बलवंड जी दी वार दा है। ये गुरु के महापुरखों के बचन ने, जिन कीती सो मनना। जिन्हें भी गुरु की सेवा की वो पूजनीक हो गए, माननीय हो गए, रिस्पैक्टड हो गए। लोगों ने उन्हों का सत्कार किया जिन्ना गुरु की गल मन्नी, जिन्ना गुरु के बचन मन्ने। को साल जिवाहें साली। हुण इत्थे एक प्रश्न है, कह लगे दसो खां कि जिवाहां दा बूटा चंगा हुंदा है, जिवाहां दी खेती चंगी हुंदी कि मुंजी दी, झोने दी? झोने दी खेती चंगी हुंदी है, वो लाभ दिंदी है, जिवाहां दी खेती नहीं। कह लगे इवें ही गुरु दे दर अंदर जेड़ा गुरु दी गल मनदा है, वो माननीय हुंदा है, वो रिस्पैक्टड हुंदा है। धर्म राय है देवता। गुरु अंगद देव महाराज धर्म दे देवते बन गए, देवी दा दर्शन करते जाते सन, हुण धर्म दे शहनशाह बन गए। राय दा अर्थ हुंदा शहनशाह। ये देवी दे दर्शन करन जाते खुद देवते हो गए, धर्म दे शहनशाह हो गए। अज लोगों नूं धर्म सिखा रहे हैं, अज भी उन्हां दे जीवन विचों सही धार्मिक होने दी सेधा मिलदियां ने। धर्म राय है देवता लै गल्लां, इनू कहा गया वर, वर देना, दात देनी। लै गल्लां करे दलाली। जिहड़ा दलाल हुंदा ना, इधरों चीज लैंदा ते दूसरे बन्ने वेच दिंदा है, दे दिंदा है, उन्होंने आखदे हैं दलाल। ये शब्द गुरु ग्रंथ साहब की बाणी अंदर बड़ी जगह ते वरत्या गया, नकारात्मक पक्ष तो भी वरत्या गया कि पंडित तू दलाली करदा, 2 नंबर की दौलत लैके पितरां नूं पहचाना। पर इत्थे शब्द दलाल गुरु जी वास्ते वरत्या गया। गुरु जी की करते हैं? इधरों सिखां दे बचन लैंदे ने ते रब दे घर पहुँचा दिंदे ने। ये गल याद रखियो, जड़ा व्यापारी हुंदा है ना, वो कित्यों वस्तु सस्ती लैंदा है, अगे महंगी बेचदा है। पर गुरु ऐदा नहीं करता। गुरु का जीवन ये नहीं है। गुरु गल सुनदा कोई मुल नहीं लैंदा है, ते अगे पहुँचाण दा भी कोई मुल नहीं लैंदा। लै गल्लां करे दलाली। सिखां दियां गल्लां बेनतियां गुरु प्रवान करदा है, रब दे घर पहुँचा दिंदा है। सतगुर आखै सच्चा करे,
सतगुरु दे आखे परमात्मा लगदा है। जो परमात्मा करदा है अपने भगत दे बचना मुताबिक करदा है। मैं गुरु की बाणी दा बचन पढ़िया, मेरी बांधी भगत छुड़ावै, मैं किसे नूं बन दियां, मैं किसे नूं जकड़ दियां, ते मेरी बंदी नूं भगत छुड़ा सकदा है। बंद है भगत ना छूटै मोहे। भगत जी का बचन है, दास अनन मेरो निज रूप। वाहिगुरु जी कह लगे जेड़ा केवल मेरा प्रेमी है। मैनू खिमा करियो, बहुत घट लोग ने जेड़े केवल रब दे ते गुरु दे हुंदे ने। उंगलां ते गिने हुए लोग हुंदे ने। बंदा कहंदा रब दा हुंदा भी गुरु दा वां, गुरु दियां गल्लां करदे भी गुरु दा नहीं हुंदा। तुसीं अज दे जमाने अंदर देख रहे हो, कहंदे सब गुरु दे ने पर गुरु दे नहीं हुंदे। भगत जी कह लगे दास अनन, अंदर हुंदा जेड़ा केवल एक दा होवे, जिन्नू किसे होर दी तांग ना होवे, जेड़ा किसे होर वाल वेखे भी ना। असी रोज एक बचन पढ़ते हैं, पाए गहे जब ते तुमरे तब ते को आंख तरह नहीं आने हो। जदों दे मैं तुहाडे चरण पकड़ लिया ना, मैं दूसरे नूं अख दे थल्ले भी नहीं लैके आया। भाव मैं किसी का अपमान नहीं करता, मैं किसी नूं माड़ा नहीं आखदा, पर मैनू तेरे तो बिना किसी का सहारा भी कोई नहीं है। जिन्हों रब तो बिना किसी का सहारा ना हो, गुरु तो बिना किसी का सहारा ना हो, उन्होंने कहते ने अनन। ते बाणी दा बचन है, दास अनन मेरो निज रूप। वाहिगुरु जी कह लगे जेड़ा मेरा है वो मेरा ही रूप है। दर्शन निमक ताप त्रई मोचन। अरे तू मेरे दे केवल दर्शन कर ला। जेड़ा मेरा रूप हो गया ना, तू ओदे दीदार कर ला, तेरे तीन तरह के संकट मिट जाणगे, तेरे तीन ताप मिट जाणगे। परशत मुक्त गरत गरे कूप। जेड़ा मेरा है ना, ओदी किते कदम बोशी कर ला। मेरे दे कदमां दे कोल बैठ के किते चार गल्लां मेरियां ओदे रसना तो सुन ला, तेरे मोह दे बंधन कट्टे जाणगे। परसत मुक्त करत गरे कूप। अगे फरमाउंदे ने मेरी बांधी भगत छुड़ावै। मेरी बज्जी नूं भगत छड़ा सकदा है, क्योंकि भगतां दी गल परमात्मा मनदा है। भगत मुखै ते बोलदे से बचन होवंदे। जो रब दा बंदा अपने मुख तो आखदा बचन हुंदे ने। ते अज भट्ट जी आखदे ने अम्यो रसना, तुहाडी रसना च अंमृत है। बदन बर दात, तुसी दात भी दिंदे हो, बर भी दिंदे हो, दातां भी दिंदे हो। एक उदाहरण गुरु की बाणी विचों तुहाडे सामने रखन लगा। श्री गुरु अर्जुन देव महाराज जी नूं खबर मिले, तनक मात्र बेनती है कि सुलही खां चढ़ के आ रहे। श्री गुरु अर्जुन देव महाराज जी नूं खबर मिले। मैं हैरान हुन्ना, लोग भगतां ते भी अटैक करते हैं, भगतां ते भी आक्रमण करते हैं, भगतां नूं भी बंद किया जाता है काल कोठड़ियां दे विच। रब दे भगतां ते भी जुल्म किया जाता है बिना किसी कारण तो। यही गल ते शेर मुहम्मद खां मलेरे कोटले वाले ने कही सी। इन्हां बच्चों का की दोष है, इन्हां बच्चों का की कसूर है? सी उन्हां गुरु के लालां दा कोई कसूर? पर बंदियां दी ईरखा ने, सुच्चा नंद वर्गियां दी ईरखा ने, चंद कौदियां दे लोभ दे कारण गंगू ने
ਸਰਹੰਦ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਸੁੱਚਾਨੰਦ ਦੀ ਈਰਖਾ ਨੇ, ਵਿਰੋਧਤਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੀਹਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਰੱਬ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਤੇ ਵੀ ਲੋਕ ਅਟੈਕ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਰੱਬ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਨਿੰਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ ਸੁਲਹੀ ਖਾਂ ਜਦ ਚੜ ਕੇ ਆਇਆ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਦੋ ਬਚਨ ਨੇ, ਪ੍ਰਥਮੇ ਮਤਾ ਜੇ ਪੱਤਰੀ ਚਲਾਵੋ, ਦੁਤੀਏ ਮਤਾ ਦੋਹੇ ਮਾਨਕ ਪਹੁੰਚਾਵੋ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਪੱਤਰੀ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਭੇਜ ਦਿਓ, ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜ ਦਿਓ ਵੀ ਤੇਰਾ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਜੇ ਪਾਤੀ ਨਹੀਂ ਭੇਜਣੀ ਤੇ ਫਿਰ 4 ਅੱਖਰ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜ ਦਿਓ, ਪ੍ਰਥਮੇ ਮਤਾ ਦੋਏ ਮਾਨਕ ਪਹੁੰਚਾਵੋ, 2-4 ਆਦਮੀ ਭੇਜੋ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਭੇਜਣੇ ਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਆਪਣੇ ਕਰ ਕਮਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਲੈਟਰ ਹੀ ਲਿਖ ਦਿਓ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਔਖੀ ਘੜੀ ਨਾ ਦੇਖਣ ਦੇਈ, ਆਪਣਾ ਬਿਰਧ ਸੰਭਾਲੇ, ਹਾ ਦੇ ਰਾਖੇ ਕਰ ਆਪਣੇ, ਸਾਸ ਸਾਸ ਪ੍ਰਤ ਪਾਲੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜਾਂ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਹੈ, ਜੇ ਤੂੰ ਵੱਲ ਹੋਏ। ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਾਮ ਗੁਰੂ ਹੋਏ ਵੱਲ, ਲੱਖ ਬਾਹੇ ਕਿਆ ਕਿਜੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਸਲਾਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ। ਤ੍ਰਿਤੀਏ ਮਤਾ ਕਿਛ ਕਰੋ ਉਪਾਇਆ, ਤੀਸਰਾ ਮਤਾ ਸੀ ਵੀ ਕੋਈ ਤੇ ਉਪਾਅ ਕਰੋ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਪਾਅ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਸਭ ਕੁਝ ਛਰੋੜ ਪ੍ਰਭ ਤੂੰ ਹੀ ਧਿਆਇਆ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਆਸੇ ਪਰਨੇ ਛੱਡ ਕੇ ਐ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੈਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਸੁਲਹੀ ਤੇ ਨਾਰਾਇਣ ਰਾਖ। ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਇਹੀ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਖਿੱਚ ਧੂ ਕੇ ਜਿੱਧਰ ਕੋਈ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈ ਜਾਏ। ਔਰ ਸੁਲਹੀ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। महाराज कहने लगे, सुलही ते नारायण राख, सुलही का हाथ कहीं ना पहुंचे, सुलही होए मुआ ना पाक, काट कुठार खसम सिर काटिया, खिन में होए गया है खाक, मंदा चितवत चितवत पचिया, मंदा चितवदा चितवदा ही मर गया। ते गुरु अर्जुन देव पिता जी कह लगे, जिन रचिया दिन दीना धाक। अपने मुख तो बचन किया भी सुलही ते नारायण राख, रखिया ना। जिहड़ा लैके आ रहा सी ना हजूर दा भराता, वो पट्ठे दिखाउण तुर पिया कि मेरे पट्ठे ने, आ देखो। ते जिस घोड़े ते सुलही बैठा सी, उपर एक पंछी आया, इतिहास विच लिखिया बाज आया, उन्हें सुलही दे घोड़े दे सिर विच ठूंगा मारिया, चुंच मारी, घोड़ा तड़प गया। ते ए आवे विच जा पिया, पट्ठे विच जा पिया, सड़ के मरिया, नापाक मौत मरिया। सच एज है कि रब दा बंदा जो अपने श्री मुख तो आखदा है वो हो जाता जे, क्योंकि रब ते रब दा बंदा एक हुंदा है। हर हर जन दो एक है, बिब विचार कछ नाहे। इहदे विच कोई दुविधा नहीं जे कि परमात्मा ते परमात्मा दा जन एक ही है। मैं ये भी कई बार बेनती की, रब जद भी बोले है अपने भगत की रसना तो बोले, वो भगतां राही बोले। भगत मुखे ते बोल दे से बचन होवंदे। अज दा बचन है, अमियो रसना बदन, बदन दर्द दा मुख। हे गुरु अर्जुन देव पिता जी, जो तुसी अपने मुख तो उचारण करते हो, कहते हो जाता है।
ते गुरबाणी दा फैसला भगत मुखे ते बोलदे से बचन होवंदे, प्रगट पहारा जाप दे सब लोग सुनंदे, सुख न पायन मुग्ध नर संत नाल खहंदे। अरे जेड़े संत नाल खैबड़दे आ ना, संत नाल रब दे बंदे नाल कलेश पा के रखदे, उन्हां दा कदी भला नहीं जे हुंदा। बीरबल एक बार चढ़ के गया दिल्ली तो, वो सारिਆਂ कोल टैक्स लैके जा रहा सी। वो मुल्तान की मुहिम ते जा रहा सी। जब अमृतसर पहुंचा ना तो गुरु अर्जन देव साहब को सुनेहा भेजा भी टैक्स दो। सतगुरु कह लगे भी इत्थे कोई टैक्स देने का सिलसिला नहीं है, ये तो मानवता के वास्ते लोगों की भलाई के कारज हो रहे हैं। साडा स्थान कोई कमाई का साधन नहीं है। जो उन्होंने वापस खबर मिली ना भी महाराज ने टैक्स देने तो इनकार कर दिता, तो वह कह लगा बीरबल, जिहदा नाम सी महेश दास पंडित, कि गुरु अर्जन देव साहब जी को कह दो हुण ते मैं फिलहाल बिजी हाँ, मुल्तान जा रहे हैं, जद वापस आवांगा फिर वेखांगा। तो श्री गुरु अर्जन देव पिता ने एक वचन किया कि जे आएगा तो देखेगा ना। वो आया ही नहीं, मुल्तान ही मर गया सी। सच्चाई ये है कि रब दा बंदा जो अपने मुख तो आखदा वो हुंदा है। इस गल की गवाही भट्ट जी अपनी कलम राही भर रहे हैं। अमियो रसना बदन बारदात, तुहाडी रसना ते अमृत है। अरे जिदी रसना ते परमात्मा दा नाम होवे, ओदा बचन फलीभूत हुंदा है, फलीभूत हुंदा है। अनंत उदाहरणा ने। अगला बचन है अलख अपार गुर सूर। हे गुरु जी तुसी सूरमे हो। मानजोग सिंह साहब जी बेनती कर रहे सन कि जिहड़ी फौज हुंदी है उन्होंने सूरमे आख्या जाता, जिहड़े मैदानी जंग अंदर लड़ते हैं। उन्होंने दे कुछ निज़म हुंदे ने, उन्होंने दे कुछ सिस्टम विच वो जीण वाले हुंदे ने, उन्होंने दे कुछ असूल हुंदे ने। ते तुहानू फौज कह के हजूर ने सत्कारिया है। अकाल पुरख की फौज है। तो जिहड़ा अकाल पुरख का आदमी है ना, सब का भला लोचदा है। सिंह साहब जी जो बेनती कर रहे सन, ये भी भला है मानवता का, ये भी एक सेवा है। अजिहे वक्त अंदर अपने आप को संजम विच रखना, दूरी बना के रखना। मेरे करके गुरु ते आखदे, तेरे करके कदी तेरी जिंदगी विचों किसी को दुख ना मिले, तो मेरे करके किसी को मौत मिल जाए, गुरु प्रसन्न होएगा। सिंह साहब जी के बचना पिछे जिहड़ा दर्द है ना, कई बार ना असीं खाह मखाई विरोध करते, जिन्हें जिहड़े विरोध कर रहे होंदे उन्हें पता भी नहीं हुंदा। केवल इसलिए करते ने भी जिहड़ा बंदा गल कर रहा है उहदे नाल बनदी नहीं। बस गल सच हुंदी है, सच नूं कबूल करना सीखो। ये सच्चाई है कि सच नूं कहना औखा है। पिछे जे सिंह साहब जी ने एक किसान अंदोलन ते भी गल की, पायदार सी। बाबा जी कह लगे गुरु सूरमै, वो मैदाने जंग का सूरमै। गुरु किते हारिया ना, अंदर दे शत्रुआं तो गुरु हारिया, ना बाहर दे शत्रुआं तो गुरु हारिया। ते अगे फरमाउंदे ने कि हे गुरु अर्जुन दे पिता जी, तुसी शब्द दे नाल हौमै निवारियो, अपने अंदरों हंकार नूं निवार दिता। बड़ा औखा है आहंग नूं छड्डना, मैं नूं छड्डना, बड़ा कठिन है। हजूर गुरु की बाणी अंदर बचन करते हैं, कह लगे मैं नहीं मिटदी,
ये केवल ज्ञान द्वारा मिटती है, समझ द्वारा मिटती कि मैं गुमान करदा काहदा वां। थोड़े दिन पहला मैं रामपुर कथा करन गया, मृतक का प्रोग्राम सी। मैं आख्या बंदे कोल अपना है कि, शरीर ही अपना नहीं है। पुछ के चल रहा है, तो जब शरीर ही अपना नहीं है तो बाकी कुछ अपना है? जब शरीर का ही मालिक तू नहीं है तो घर का मालिक हो सकता है, दौलत का मालिक हो सकता है। रब ने तो इनू दिती है, शुकराना कर, गुमान ना कर। पर बंदा परमात्मा दे दिते ते गुमान करता है। ये गुमान दी दवाई केवल गुरु दा ज्ञान है। हजूर कह लगे तुसी शब्द के द्वारा अपने अंदरों आहंग नूं निवारिया, पंचाहर निदलियो। ये जड़े 5 विकार ने, इन्हां नूं दल मल दिता। तुसी देखो विकारां दे थल्ले बंदे दलदे मलदे जा रहे ने, मिट रहे ने। विकार सब नूं बेइज्जत कर रहे ने। पर गुरु जी तुसी ते 5 विकारां नूं, ज्ञान इंद्रियां नूं भी अपने अधीन कर लिया। कोई विरला माई दा लाल है जिदे नेत्र ओदे अधीन होन, जिदे कर्म इंद्रिय ओदे अधीन होन। कोई विरला गुरु दा प्यारा जे जिदे माया अधीन होए। सब माया दे अधीन ने, सब विकारां दे अधीन ने। पर रब दा प्यारा विकारां नूं अपने अधीन रखदा है। मैं कई बार बेनती की है, कार ते तुसी बैठे चला रहे हो, सुख देगी। पर जे बेध्याने हो गए, एक्सीडेंट हो गया, गड्डी पलट गई, वही दुख देगी, वही मौत देगी। बाबा कबीर जी का एक बचन है, जरी तवज्जो बख्शो। कबीर गूंगा हुआ बावरा। कबीर जी कह लगे मैं गूंगा हो गया, तो जेड़ी गल कह रहे ने बोल के कह रहे ने। अगर गूंगा शब्द भी बोलना है तो कोई जुबान वाला ही बोलेगा। कबीर कह लगे कबीर गूंगा हुआ बावरा, बहरा हुआ कान, पांव ते पिंगल भया। मेरे पैर पिंगले हो गए, कन मेरे बहरे हो गए, अखां मेरियां दिसणों रह गईयां, इन्हां नूं दिसदा ही कुछ नहीं। ते पुछिए कबीर जी होया किवें? सतगुर मारिया बान। हुण वो किहड़ा पिंगलापन है? कदम गलत पासे नहीं चलते, करन गलत नहीं सुनते। इनू निदलियो शब्द वरते है कि तुसी अपने इंद्रियां नूं अपने अधीन रखिया होया है। सुन सहज निज कर सहारियो। तुसी अफुर अवस्था विचों, तुसी सहज अवस्था विचों। आप जी दे अंदरों कोई गलत फुरना उठदा ही नहीं। हर नाम लाग जग उधरियो। हे गुरु अर्जुन दे पिता जी, तुसी जिस तरीके दे नाल अपना जीवन सफल किया, तुसी जिस तरीके दे नाल अपनी काया सफल की, वो तरीका तुसी लोगां नूं भी बख्शे। आ तरीका जे कि परमात्मा दा नाम, गुरु दा ज्ञान। हे गुरु अर्जुन दे पिता जी, हर नाम लाग जग उतरियो। हरि दे नाम दे नाल जोड़ के तुसी जगत नूं तार दिता, विकारां तो बेपरवाह कर दिता। जेड़े तुहाडे दिते हुए ज्ञान दे नाल जुड़ गए, उन्हां ने विकारां नूं कंट्रोल विच कर लिया। उन्हां ने इन्हां गलतियां नूं, इन्हां विकारां नूं गलती नहीं बनाया, सिरजना बनाया। गुर हृदय बसायो। हे गुरु अर्जुन दे पिता जी, तुसी गुरु दे ज्ञान नूं अपने हिरदे विच वसा लिया। पट साहब जी दे बचन ने, कह लगे तै जनमत गुरमत ब्रह्म पछाणियो। हे गुरु अर्जुन देव जी,
तुसी जमदे ही ब्रह्म की पहचान कर लई। आखिरी पंक्ति है भट्ट कलसहार जी दी, गुरु अर्जुन कल उचरा। हे गुरु अर्जुन देव जी, भट्ट कल जी ये आखदे हन, तैं जन कै कलश दी पायो। हर गुरुद्वारे ते तकरीबन कलश हुंदे ने, ते कलश जिहड़ा ना धर्म दा लखायक हुंदा है, धर्म दा प्रतीक हुंदा है। गुरुद्वारियां ते कलश, मंदिरां ते कलश, ये धर्म दा लखायक हुंदे ने। हे गुरु अर्जुन देव पिता जी, तुसी ज्ञान दे कलश दा प्रकाश कीता। कलश पुराने हुंदे ने, कलशां दी दोबारा दोबारा मरम्मत करनी पैंदी आ, पर तुसी ज्ञान दा कलश चमकाया। भाव तुसी ज्ञान वंडिया, तुसी लोगां नूं ज्ञान दे के करतार्थ कीता। ये सिफत गुरु अर्जुन देव साहब जी महाराज जी दी कलसहार भट्ट जी कर रहे सन। इन्ने को बचन प्रवान करने, होइयां भुल्लां खिमा करनियां, बुलाओ फतेह। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। रामकली महला तीजा। आनंद एक ओंकार सतगुर प्रसाद। आनंद भया मेरी माए, सतगुरु मैं पाया। राग रतन परवार परियां, शबद गावण आईयां। कह नानक आनंद हुआ, सतगुरु मैं पाया। हर नाल रह तू मन मेरे, दुख सब विसारना। सबना गल्लां समरथ स्वामी, सो क्यों मनो विसारे। साचे साहिबा क्या नाही घर तेरे। सदा सिफत सलाह तेरी, नाम मन बसावे। कह नानक सच्चे साहिब क्या नाही घर तेरा। सच्चा नाम मेरा आधारो। कर शांत सुख मन आय वसिया, जिन इच्छा सब पुजाइया। कह नानक सुनो संतो, शब्द धरो प्यारो। साचा नाम मेरा आधारो वाजे। पंच दूत तुद वस कीते, काल कंटक मारिया। कह नानक तै सुख होआ, तित घर अनहद वाजे। पार ब्रह्म प्रभ पाया, उतरे सगल वसूरे। संत साजन भये सरसे, पूरे गुर ते जानी। बिनवंत नानक गुर चरण लागे, वाजे अनहद तुरे सलोक। पवन गुरु पाणी पिता,
ਦਿਵਸ ਰਾਤ ਦੁਇ ਦਾਈ ਦਾਇਆ ਖੇਲੇ ਸਗਲ ਜਗਤ ਗਿਆਈਆਂ ਬਰਿਆਈਆਂ ਵਾਚੈ ਧਰਮ ਦੂਰ ਕਰਮੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਕੇ ਨੇੜੇ ਕੇ ਦੂਰ